Students, today we will discuss the next topic of chapter biomolecules, that is amino acids. Student, as the name indicates, these are the compounds which contains amino, that is NH2, and carboxylic, that is COOH ग्रुप्स. तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें आपको ये दोनों ग्रुप मिलेंगे, ऑल दीज आर सेड टू बी द अमीनो एसिड. जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में COOH NH2 है, दिस इज द अमीनो एसिड ग्लाइसिन. सेकेंड कंपाउंड, दिस आल्सो कंटेन COOH NH2, दिस इज द अमीनो एसिड एलिनाइन. थर्ड कंटेन COOH NH2 एस्पेटिक एसिड, this one COOH NH2 glutamic acid, and this one again COOH NH2 lysine. So all these are the example of amino acids. In the short clear है कि these are the compound which contain both NH2 as well as COOH groups. Now general representation of amino acids. हम इनको generally कैसे represent करते हैं? General representation, see out the students. In all the amino acid, if you will see, there is a COOH group. On the left there is an NH2 group and in between we are having a CH, और उसके नीचे बेटा एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, that is the alkyl group. So this is the general representation of, you can say, amino acid. चेक भी करते, यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप की जगह H है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या आ गया, CH3, here CH2 COOH, here CH2 CH2 COOH, here CH2 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 NH2. सो जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता है, NH2 COOH, दिस वन ये बेसिक है सब में जो मैंने अंडरलाइन किया है. और जो चेंज है वो यहाँ पर है, इसमें दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह आप अलग अलग ग्रुप्स लगाओगे विच आर बेसिकली द अल्काइल ग्रुप्स. सो द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड इज NH2CHR COOH. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू द configuration of amino acids, that is D and L configuration of amino acids. It is very clear, if the NH2 group, it is on the right hand side, it is the D configuration, and if this group is on the left hand side, then this is said to be the L configuration. ध्यान रखना है, जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे अमीनो एसिड को, सिर्फ आपको NH2 ग्रुप देखना है. तो अगर मैं ग्लाइसिन का एग्जांपल लेता हूं, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिन. इफ आई विल ड्रॉ CH दिस वे, दिस इज COOH and this is NH2. Now see the student, the NH2 group is now on the left hand side, so this will be the L glycine. And if I will do one thing, कि मैं बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, NH2 को मैं यहाँ नोट करता हूँ और COOH मैं यहाँ करता हूँ. So see, the NH2 is now on the right hand side, so this is said to be the D glycine. Clear? So this is regarding the configuration of amino acid, D and L configuration of amino acids. Now the next one that we will discuss, common name and abbreviation of amino acids. Listen student, the common names, these are based on the two things, either on the basis of the source कि जो अमीनो एसिड है वो हमें मिला कहाँ से, और it depends on the characteristic property of amino acid. So इन्हीं दो पे आपका अमीनो एसिड का कॉमन नेम बेस्ड होता है. So therefore I have written some common names. This is the amino acid glycine. अगर आप एक H हटा के CH3 लगाओगे, this is the amino acid alanine. अगर आपने H हटा के CH2 COOH अटैच किया, this is aspartic acid. एस्पेटिक एसिड में एक CH2 और अगर आप ऐड करोगे, then this will be the glutamic acid. And the last one, वही आपने नोट किया, COOH NH2, और एक H हटा के अब आपने 4 CH2 ग्रुप 1 2 3 4 और NH2 अटैच किया, this is lysine. All these are the common names. Now the abbreviations. These are the
फर्स्ट 3 letters ऑफ द कॉमन नेम। जो भी बेटा अमीनो एसिड का कॉमन नेम है उसके फर्स्ट 3 letters होंगे। तो ग्लाइसिन का जो एब्रीविएशन बनेगा दैट इज GLY, एलिनाइन का बेटा ALA, एस्पेटिक एसिड इज ASP, ग्लूटामिक एसिड इज GLU and lysine is LYS. So this is regarding the common name and abbreviations of amino acid. Now I will shift to the next one, that is IUPAC, nomenclature of amino acids. Now students, see one thing, in the amino acid there are 2 groups, COOH and NH2, and all of you know that COOH is more oxidizing, therefore it will act as functional group, whereas NH2 it will act as substituent, and as a substituent this NH2 is written as amino, and COOH as a functional group is written as oic acid. One more thing you have to remember, if this functional group is at position 1, then there is no need to write the position, ये आपको ध्यान रखना है। सो जस्ट सी आउट, जितने भी अमीनो एसिड हैं we'll do their common names one by one. So first we will we'll do the IUPAC names. So first we will do the IUPAC name of glycine. See the student, glycine is CH2 COOH NH2. Now all of you know this NH2 is a substituent, so बेटा ये आपकी कार्बन चेन, और all of you know जो फंक्शनल ग्रुप है it will get the lowest number, so बेटा ये 1 और ये 2. So 2 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो, the chain is of 2 carbon atom, I will write eth, सिंगल बॉन्ड है I will write एक N, और बेटा COOH के लिए what will I write, oic acid, 2 amino ethanoic acid. Now the IUPAC name of alanine. The difference is very clear. सिर्फ आपको एक या छटा के CH3 लगाना है, so this will be now the alanine. So this NH2 बेटा substituent है. Now this is the chain and functional group should get the lowest number, so numbering is 1, 2 and 3. Now this substituent is at position number 2, so I will write 2 amino. तो बेटा चेन 3 कार्बन एटम की है, आई विल राइट प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, सो आई विल राइट ओइक एसिड. सो द नेम इज 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड. नाउ द नेक्स्ट अमीनो एसिड इज एस्पेटिक एसिड. Now aspartic acid is this one, NH2 CHCOOH CH2 COOH. Now student there are 2 functional group and this NH2 is a substituent, so हमें दोनों को चेन में रखना है. This will be the chain. अब पोजीशन देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगी. अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 and 4. Now see the positions of the functional group. अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 1 और 4. अगर आप बेटा यहाँ से नंबरिंग करोगे देन अगेन द पोजीशन इज 1 and 4. मीन्स कि हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि नंबरिंग कहाँ से करनी है. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड जो यहाँ पे नहीं है, देन ट्रिपल बॉन्ड जो यहाँ पे नहीं है, देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. नाउ दिस NH2 इज द सब्स्टिट्यूएंट. अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो इसको नंबर क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2, और बेटा यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3. सो आउट ऑफ 2 and 3 2 इज द लोएस्ट, तो नंबरिंग बेटा यहाँ से होगी. दिस विल बी द यू कैन से फॉल्स नंबरिंग. सो वही रूल्स है IUPAC नॉमेनक्लेचर जो आप लोगों ने 11th क्लास में कर रखे. नाउ द नेम इज 2 amino, chain is of 4 carbon atom, I will write but, all are single bond, एन. अब जो आपके फंक्शनल ग्रुप है पोजीशन 1 और 4 पे है, सो 1, 4 डाई ओइक
acid, 2-amino-butane 1,4-dioic acid. Now next we'll do the IUPAC name of glutamic acid. The glutamic acid is NH2, then CH, COOH, CH2, CH2, COOH. Now beta, this is the substituent. Now these two functional group we have to take them in the carbon chain. So ये आपकी चेन. So दोनों तरह से नंबरिंग करेंगे आप इसकी, तो ऐसे नज़र आ रहा है. अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5. सो सबसे पहले पोजीशन देखिए फंक्शनल ग्रुप. यहाँ से करोगे तो बेटा 1 और 5, फ्रॉम दिस साइड 1 एंड 5. मीन्स हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि नंबरिंग कहाँ से कर रही है. देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, जो नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. इन द लास्ट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग देखिए, अगर आप यहाँ से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो है इट इज़ एट नंबर 2, और यहाँ से करोगे तो 1 2 3 इट इज़ एट 4. सो आउट ऑफ 2 and 4 आई थिंक 2 इज़ द लोवेस्ट नंबर. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट नंबरिंग. ये वाली नंबरिंग हम मिटा देते हैं सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. चलिए, नाउ हाउ कैन आई राउंड डाउन द नेम? 2-amino. Now the chain is of 5 carbon atom, 1 2 3 4 5. So I will write pent. All are single bond. Ane. Now functional group is at 1 and 5 position, 1,5 dioic acid. So this is the name of, you can say that, particularly glutamic acid. And last we will see the IUPAC name of lysine, Lysine. The structure of lysine is NH2 CHCOOH. CH2 is 4 times, 1 2 3 4, and in the last NH2. So in this we have to see कि which is the functional group and which is the substituent. So बेटा ये NH2 ये आपके substituent है, ये functional group है. So this will be the chain, and all of you know functional group will get the lowest number. So 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन एटम चेन. क्लियर? अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 2 और 6. सो आई विल राइट 2 6 डाइअमीनो. नाउ द चेन इज ऑफ 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6. सो आई विल राइट हेक्स. ऑल सिंगल बॉन्ड एन, और फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है, ई हटाइए. आई विल राइट हेक्सेनोइक एसिड. So this is 2,6 diamino hexanoic acid. So this is regarding the complete information that we have done. That is the, you can say, IUPAC nomenclature, then common name and all these things. Now the next that we will do is the classification of amino acids. Classifications of AA stands for amino acids. So we are having 2 or 3 different ways of classification. तो first जो हम classify करेंगे, we will classify on the basis of relative number of carboxylic and NH2 groups, कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, ऑन दैट बेसिस. तो इसमें बेटा हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 3 मेन टाइप्स में. फर्स्ट इज, यू कैन से, स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल, एसिडिक अमीनो एसिड. सेकेंड इज बेसिक अमीनो एसिड, एंड थर्ड इज न्यूट्रल amino acid. Now in acidic amino acid, be remember the number of COOH groups are greater than NH2 groups. तो यहाँ पर देखिए बेटा किस में COOH ग्रुप का नंबर ज़्यादा है.
आई थिंक अगर आप एस्पेटिक एसिड में देखिए तो 2 COOH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप, 2 COOH ग्रुप हैं आपके और एक आपका NH2 ग्रुप है। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड में देयर आर 2 COOH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप। तो एसिडिक अमीनो एसिड में जो एग्जांपल्स आएंगे दीज आर, यू कैन से aspartic acid, second I will write glutamic acid. Now second is basic amino acid. Basic amino acid means the amino acid in which the number of NH2 group is greater than COOH group. Clear to all of you? सो जस्ट सी द स्टूडेंट्स, अब NH2 का नंबर किस में ज़्यादा है? आई थिंक लाइसिन अगर हम चेक करें, इट कंटेन 2 NH2 ग्रुप्स एंड 1 COOH. सो हेयर द एग्जाम्पल इज, यू कैन से लाइसिन. नाउ द थर्ड इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. इन न्यूट्रल अमीनो एसिड्स द नंबर ऑफ NH2 group is equal to the number of COOH group. So we are having the two example, glycine and alanine. Glycine में 1 COOH 1 NH2, alanine में बेटा 1 COOH 1 NH2. So we are having the example glycine and alanine. So again एक बार definition देखते हैं. Acidic amino acid are the amino acid in which the number of COOH group are greater than NH2 group. Basic में number of NH2 group are greater than COOH. Whereas in neutral, the number of NH2 group is equal to COOH group. So this is the first classification of amino acids on the basis of relative number of COOH as and NH2 group. Now, second is classification on the basis of पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप. जो बेटा NH2 ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेक करना है. ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाई देम इनटू, फर्स्ट इज अल्फा अमीनो एसिड, सेकेंड इज बीटा अमीनो एसिड, थर्ड इज गामा अमीनो एसिड. सो अल्फा अमीनो एसिड में क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप इज एट अल्फा पोजीशन, whereas in beta amino acid the NH2 group is at beta position. In gamma amino acid the NH2 group is at गामा पोजीशन. सो जस्ट सी, आई विल गिव यू सम एग्जांपल. अगर हम डिस्कशन करें दिस एग्जांपल CH2 COOH एंड दिस इज NH2. नाउ फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है बेटा वो अल्फा होता है और NH2 ग्रुप किस पे लगा हुआ है, अल्फा पे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. नाउ सी दिस एग्जांपल COOH CH2 CHNH2 एंड CH3. नाउ फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट दिस इज अल्फा, इससे नेक्स्ट बीटा. अब जो NH2 ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन पे. देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा अमीनो एसिड. नाउ द थर्ड वन COOH CH2 CHNH2 एंड CH3. नाउ फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट दिस इज अल्फा पोजीशन, नेक्स्ट वन बीटा, नेक्स्ट वन गामा. See, now the NH2 group is at which position, alpha, gamma position. Therefore this is said to be the gamma amino acid. Now this we have done the second classification. Now the third classification and the last classification is on the basis कि जो आपका अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है. मीन्स वी कैन से थर्ड क्लासिफिकेशन on the basis of synthesis in bodies. So I want to tell you one thing, that there are total 20 amino acids that you have to remember. This is not a big you can say figure, but important है, 20 amino acids है.
सो ऑन दैट बेसिस बेटा हम इनको डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में. नंबर 1 essential amino acids, second is non-essential amino acids. So as the name indicates, essential amino acid क्या होते हैं? These are the amino acids which are not synthesized in the body. बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, therefore these are required, hence required through external diet. Therefore the name is essential, कि हमें इनकी एसेंशियलिटी है, हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती. As far as the example is concerned, we have done lysine. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, ल्यूसीन. थर्ड, histidine. So these are the 3 you can say essential amino acids. Now non-essential amino acid, non-essential means हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. क्यों? Because these are synthesized in the bodies. So non-essential, these are the amino acids which are synthesized in the body, hence not required through external diet. Now the examples are, we have done glycine, second we have done LA9. So this we have completed the, you can say, classification of amino acid. Now we'll shift to the next part, that is physical properties of amino acids. Next is physical properties of amino acids. The first physical property is that amino acid form Zwitter ion structure. This is also said to be the internal salt structure or dipolar ion structure. Now see what is the meaning of this Zwitter ion structure. We'll take the example, just see out. This is CH2, this is COOH, this is NH2. Now all of you know carboxylic acid is acidic in nature and NH2 group is basic in nature. And according to the concept of acid and base, acid are the substances which donates, I can say proper word, which donates proton, that is H positive, and base are the substances which accepts proton or H positive. तो क्या होगा बेटा, यहीं पर what happens, COOH क्या करेगा, it donate the H positive ion और इसको accept कौन करेगा, NH2. So what will I get, CH2 COO negative और यहाँ पे I will get on this side NH3 positive. Now this structure which contain 2 poles, you can say positive negative, or 2 charges positive negative, this is said to be the Zwitter ion structure. Hence the name is dipolar ion. Dipolar means 2 ions positive negative, and internal salt structure means all positive negative are in, you can say, in the compound. So definition क्या आएगी Zwitter ion structure की, the structure which contains both positive and negative ends in the same molecule due to में लिख सकते हैं हम, I can say proper word अगर मैं लिखूं, that is formed due to transfer of proton from acid to base. So ये आपका Zwitter ion structure है. किसी का भी आपको बनाना पड़ जाए तो आपको करना क्या है,
COOH से H पॉजिटिव निकालिए और उसको शिफ्ट कहाँ करना है आपको, NH2 पे. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड इज द अमीनो एसिड्स, these are solids, or you can say particularly crystalline solids with high melting point, boiling point. Now see the students, whenever a substance is a crystalline solid and it will have a high melting and boiling point, तो इसका जो रीज़न होता है, रीज़न इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी देन ऑब्वियसली द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर. नाउ जस्ट सी आउट. अभी आपने देखा जो एमिनो एसिड है इट विल एग्जिस्ट एज ज्विटराइन स्ट्रक्चर. सो ज्विटराइन स्ट्रक्चर की वजह से बेटा इट विल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और जहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगी सो वहाँ पर वी आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग electrostatic forces. So due to strong electrostatic forces we can say that amino acid are crystalline solids with high melting and boiling point. Clear to all of you? Now the third property, these amino acids are soluble in number one polar solvents. पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे. रीज़न बिल्कुल क्लियर है. दीज पॉजिटिव पोलर सॉल्वेंट इन द सेंस दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द ज्विटराइन आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट में जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं उनसे अट्रैक्ट होंगे. एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं. अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, अगर स्ट्रक्चर देखें बेटा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा. इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव. एंड दिस इज योर ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव. नाउ ये आपका एक पोलर सॉल्वेंट है. नाउ दिस पोलर सॉल्वेंट, ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को. क्लियर. एंड दिस पॉजिटिव आयंस दे विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज. क्लियर. तो अगर आप एक ही मॉलिक्यूल में बात करें तो स्टडी अगर हम एक ही मॉलिक्यूल में करें तो क्या होगा, फिर से देखिए. एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव को तो नेगेटिव को H पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव वाला पार्ट. ड्यू टू विच इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी. एंड दिस कंपाउंड विल इजीली गेट डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट. सो एक रूल होता है कि पोलर डिजॉल्व पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक. सो यहाँ पर जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड थे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते थे, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है. नाउ द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी इज अमीनो एसिड्स आर soluble in water. वाटर के लिए हमारे पास एक और रीज़न होता है, बिकॉज यू कैन से अमीनो एसिड दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. वाटर के साथ बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, देयरफॉर वी कैन से सॉल्युबल है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएंगे चलिए चेक करते हैं. दिस इज द अमीनो एसिड CH2COOH. प्रॉपरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल NH2. क्लियर. एंड दिस इज योर water, delta negative, this OH is delta positive. So हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा that is the you can say hydrogen bond. So amino acid they can form the hydrogen bond with water. तो particularly अगर water की solubility का बात है तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज रिगार्डिंग यू कैन से द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें हमने किया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वी हैव डन द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड वी हैव डन द सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट वी विल स्टडी द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इट इज रिटन एज और सिंबलाइज्ड एज PI. चलिए पहले डेफिनेशन बताते हैं.
it is the pH at which amino acid does not migrate towards any electrode. अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं होगा, नाइदर टूवर्ड्स कैथोड नॉट टूवर्ड्स एनोड. उस पर्टिकुलर पीएच को हम क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको. स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू नो, जो आपका अमीनो एसिड है, सपोज हम इसी को लेते हैं, दिस वन ग्लाइसिन, इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन. सो इसका ज्विटर आयन बनाइए. हाउ इट फॉर्म्स? CH2, यहां से H पॉजिटिव, COOH से कहाँ जाएगा? NH2 पे. सो दिस विल बी CH2 COO नेगेटिव और बेटा ये आपका NH3 पॉजिटिव. अब अगर आपने अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, एसिडिक मीडियम मीन्स कि आपने एसिड ऐड किया, सिंपली आई विल से एडेड एसिड. जब आप एसिड ऐड करोगे तो बेटा पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा. और बेसिकली आपने क्या ऐड किया है? H पॉजिटिव. सिमिलरली बेस का भी देखिए एक बार. अगर आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हो, बेसिक मीडियम मीन्स वी हैव एडेड बेस, और जब आप बेस ऐड करोगे तो पीएच क्या करेगा? इंक्रीज. ये आपको अच्छी तरह क्लियर है कि जब भी आप एसिड ऐड करोगे तो पीएच डिक्रीज करेगा, बेस ऐड करोगे पीएच इंक्रीज करेगा. और बेस ऐड करने का मतलब कि आपने OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड किए. यहां पर आपने इन द एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड किए. सो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होती है. अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ये डायरेक्टली किससे जुड़ेगा? COO नेगेटिव से. वी विल गेट NH3 पॉजिटिव CH2 COOH. क्लियर? अब यहां पर देखिए ये जो आपका कंपाउंड बना है इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल माइग्रेट टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इसकी नेचर क्या है? कैटायन. बेसिकली क्या है ये? कैटायन. सो कैटायन कहां पर माइग्रेट हुआ? टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं पीएच को डिक्रीज करूंगा तो अमीनो एसिड कहां पर माइग्रेट होगा? टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. ध्यान रखना इस चीज को. नाउ देखिए जब आप बेस ऐड करते हो, अब इसको हटाते हैं यहां से, लेट्स सी आउट व्हाट हैपेंस नाउ. तो OH नेगेटिव क्या करेगा? इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड NH3 पॉजिटिव, और OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव से जुड़ेगा इस तरह से. OH नेगेटिव किससे कंबाइन करेगा? H पॉजिटिव से. क्या बनाएगा? वाटर. सो बाई प्रोडक्ट यहां पे क्या निकलेगा? H2O. अब अगर यहां से H पॉजिटिव निकल गया तो व्हाट इज लेफ्ट? NH2. रेस्ट आउट हम नोट करते हैं, CH2 COO नेगेटिव. अब इसको देखिए बेटा, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. मीन्स बेसिकली क्या बना हमारा? ये एनाइन. और एनाइन जो है कहां माइग्रेट करेगा? इट विल माइग्रेट टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो बेटा यहां से क्या चीज क्लियर आ रही है कि अगर आप पीएच को डिक्रीज करोगे तो वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड. अगर आप पीएच को इंक्रीज करोगे तो वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? पॉजिटिव. तो बीच में कहीं पर इन बिटवीन एक ऐसा पीएच आएगा जहां पर ना तो वो नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा ना वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा. उस पर्टिकुलर पीएच को हम क्या कहेंगे? वी विल से दैट पर्टिकुलर पीएच इज isoelectric point. The pH at which amino acid does not migrate towards any electrode. Clear to all of you? So ये थोड़ा हुआ. बाकी इसको क्वेश्चन एग्जामिनर कई तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज द, सबसे इजी क्वेश्चन तो यही पूछता है कि व्हाट इज द, आई विल राइट हियर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन अमीनो एसिड. तो यहां से आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने मैकेनिज्म आपको क्लियर किया, इसको ध्यान रखिएगा. नाउ नेक्स्ट वी विल डू द कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू? सिंपल एक फॉर्मूला है, डिस्कस करते हैं. क्या फॉर्मूला है? ऑल ऑफ यू नो कि आपका जो अमीनो एसिड है इट कंटेन्स एसिडिक ग्रुप का अगर बात कीजिए, ये COOH है, ये आपका NH2 है. अगर यहाँ से
देखिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड किया तो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करने पर क्या होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, NH3 पॉजिटिव में, CH2 और COOH। हम सिर्फ इसी का डिस्कशन करेंगे, हम ऊपर की बात ही नहीं कर रहे। आपके अमीनो एसिड के अंदर एक तो COOH एसिडिक ग्रुप है, और अगर NH2 ने H पॉजिटिव को गेन करा प्रोटॉन को, तो उसकी भी नेचर क्या हो गई, एसिडिक। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपके एसिड होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है pKa दोनों के लिए। pKa ऑल ऑफ यू नो दिस इज द नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, क्लियर। और Ka आप लोगों ने 11th में कर रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सो यहां पर मैंने आपको बताया कि आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, pKa वैल्यू प्रोवाइड करेंगे COOH ग्रुप के लिए, और NH2 ग्रुप जो प्रोटॉन को ऐड करके किस में कन्वर्ट हो चुका है, NH3 पॉजिटिव। सो आपको Pi कैसे निकालना है, इट इज द एवरेज ऑफ pKa वैल्यूज, और पर्टिकुलरली अगर लिखें इट इज द एवरेज ऑफ 2 pKa वैल्यूज। 2 pK वैल्यूज की आपको एवरेज लेके चलनी है, यानी मैं आपको इसकी भी मैथमेटिकल वैल्यू दूंगा और इसकी भी मैथमेटिकल वैल्यू दूंगा, आपको सिर्फ उसका क्या करना है, एवरेज करना है। सो ये एवरेज इज नॉट द इजी एवरेज, हम इसको विद एग्जांपल स्टडी करते हैं। सो हमारा जो अभी क्वेश्चन है Pi कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्वेश्चन वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल्स दोनों स्टडी करेंगे अभी। चलिए, सो इसमें वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 इज COOH CH3 and this one is NH3 positive. So COOH will have the pKa 2.34 and this NH3 positive will have the pKa 9.69. सो एवरेज लेना है। देखिए एक COOH एक NH3 पॉजिटिव, सो जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दैट इज Pi, it is simply 2.34 plus 9.69 divided by 2. This on solving comes out to be 6.02. तो ये तो आपने कैलकुलेट किया जब आपके पास एक COOH और एक NH3 पॉजिटिव है, ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, चलिए, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड आई विल ड्रॉ NH3 पॉजिटिव, CH2 CH COOH NH3 पॉजिटिव। ना यहाँ पर देखिए बेटा 2 NH3 पॉजिटिव और एक COOH है, ठीक है। तो आप एवरेज किसकी लेके चलोगे ये आपको ध्यान रखना है। आप जो एवरेज लेके चलोगे आप सिमिलर की लेके चलोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम वैल्यूज तो तीनों की गिवन होंगी, मैं लिख भी देता हूँ, वैल्यूज गिवन तीनों की हैं। pK फॉर COOH it is 2.18, NH3 this one is 8.95, and this NH3 positive is 10.79. सो अगर आपके अमीनो एसिड में मोर देन वन COOH या मोर देन वन NH3 पॉजिटिव है तो सिमिलर ग्रुप्स का pK आपको एवरेज में लेना है। So this will now Pi is now the average of 10.79 plus 8.95 डिवाइड बाई 2। हमने COOH को यूज नहीं किया, ये बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। दिस विल बी 9.87, क्लियर। नाउ विल डू वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड आई विल ड्रॉ हेयर। थर्ड वन इज COOH CH2 CH NH3 COOH, दिस इज NH3 पॉजिटिव। अब आप किसका लेके चलोगे pK वैल्यूज,
इन दोनों COOH का, इसका नहीं लेना, वैल्यू आपको गिवन होगी, मैं नोट कर देता हूँ. दिस इज pKa 2.19, this will have the pKa 9.67, this will have the pKa 4.25. सो आपको एवरेज इसकी और इसकी मीन्स दोनों COOH ग्रुप की लेनी है. सो दिस विल बी PI नाउ 4.25 प्लस 2.19 डिवाइडेड बाई 2. अब इसको आपने ध्यान कीजिए, यहाँ पर हमने इसको एलिमिनेट किया था, डिफरेंट था, ठीक है ना. तो डिफरेंट वाले को आपको, सॉरी ये डिफरेंट था COOH, इसको एलिमिनेट किया था. यहाँ पे ये डिफरेंट है, इसको हमने एलिमिनेट किया. एंड दिस वैल्यू इन द थर्ड एग्जाम्पल कम्स आउट टू बी 3.22. सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने कैलकुलेट किया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, at pH 6, predict the migration of amino acids. Predict the migration of amino acids. आपको बेटा अमीनो एसिड का माइग्रेशन प्रिडिक्ट करना है. तो चलिए 3 स्ट्रक्चर है हमारे पास. फर्स्ट इज you can say CH, COO negative, NH3 positive. This one is CH3 first. Second, I'll draw here NH3 positive, CH, COO negative, CH2 4, NH3 positive. This is second. And I'll draw third here. Third is NH3 positive, CH, COO negative. Then this one is again CH2 COO negative. You have to tell ये migrate कहाँ करेंगे. They will migrate toward positive electrode or negative. तो इसमें देखो फर्स्ट में positive negative means this compound is, or you can say this is neutral. Neutral होने का मतलब it does not migrate toward any electrode. Very important. अब इसमें आइए बेटा, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट, क्लियर. और इस पे जो नेट चार्ज बचेगा वो कौन सा बचेगा? पॉजिटिव. मीन्स इट विल बिहेव लाइक अ कैटायन और इट विल हैव नेट पॉजिटिव चार्ज. तो ड्यू टू नेट positive negative, yes, positive charge, it will migrate toward negative electrode. Clear to all of you? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये माइग्रेट करेगा, ठीक है. सेकेंड वन, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का जो नेम आपको पता है अच्छी तरह से, कैटायन, इट विल माइग्रेट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. चलिए अब थर्ड में स्टडी करते हैं. थर्ड जो एग्जांपल है, इलेक्ट्रोड के नेम आपको पता है कि एनोड और कैथोड. ऑन दैट बेसिस हम इनको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं. आइदर यू विल राइट कि नेगेटिव की तरफ माइग्रेट कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, और यू विल राइट कि भाई ये एनोड की तरफ माइग्रेट कर रहा है और कैथोड की तरफ. बोथ मीन्स सेम. अब इस पे आइए, इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया, तो इस पे नेट चार्ज क्या है? नेगेटिव. सो वी विल से दिस इज एन एनायन, और इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज है. ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट विल माइग्रेट टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, we have to write the most stable structural formula, or you can write most stable structure of amino acid. Given amino acid is OH, this is phenyl group, CH2, CH,
NH2COOH। हमें इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ इन कैटायनिक फॉर्म, सेकेंड एनायनिक फॉर्म, थर्ड डाइएनायनिक फॉर्म एंड फोर्थ इज ज्विटर आयन। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। आपको इतना अच्छी तरह से पता होगा कि ये जो एसिड है COOH, अगर ये H पॉजिटिव को लॉस करेगा तो ये बेटा किस में कन्वर्ट होगा, COO नेगेटिव। सिमिलरली अगर ये OH ग्रुप ये H पॉजिटिव का लॉस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, O नेगेटिव। और NH2 ग्रुप जो की बेस है ये H पॉजिटिव को गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, NH3 पॉजिटिव में। दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। चलिए अब इन ऑन दैट बेसिस अब वर्कआउट करते हैं। तो इसने कहा फर्स्ट पॉइंट कि आपको इसका सबसे स्टेबल कैटायनिक स्ट्रक्चर नोट करना है। कैटायनिक का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अगर मैं यहाँ से H पॉजिटिव हटाता हूँ या यहाँ से हटाता हूँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बट मुझे इसका कैटायनिक स्ट्रक्चर बनाना है। मीन्स इस NH2 को किस में कन्वर्ट करना होगा, NH3 पॉजिटिव। द स्ट्रक्चर आई विल गेट, यहाँ पर बनाते हैं स्मॉल OH फिनाइल ग्रुप, CH2 CH NH3 पॉजिटिव COOH। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कैटायनिक। क्लियर। और ज्विटर आयन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, डजंट मेक, उस कंसेप्ट को भी ला सकते हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के कंसेप्ट को भी ला सकते हो। भी कैटायन कब बनेगा, एनायन कब बनेगा, एसिड डालने पर या बेस डालने पर, मर्जी आपकी है, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। नाउ एनायनिक। अब एनायन के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। मैं यहाँ से H पॉजिटिव निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी, बट आउट ऑफ OH एंड COOH इज मोर ऑक्सीडाइजिंग। सो आपको मोस्ट स्टेबल एनायन बनाना है तो यहाँ से H पॉजिटिव निकालिए, यू विल गेट OH this is most stable anionic. Now dianionic, two negative ions. So बेटा यहाँ से भी H पॉजिटिव हटाओ और यहाँ से भी, you will get O negative. This is dianionic. And in the last ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में आपको पता है क्या करते हैं, जो आपका एसिड है वहां से you have to migrate the H positive ions toward the base. So I will get OH, this one again phenyl ring, CH2, CH, NH3 positive, and this one is COO negative, Zwitter ion structure. So this is about the question number 3 that we have discussed. Now question number 4. Question number 4 is, which is more soluble in water? Just see out carefully. Which is more soluble in water? So first part we are having CH3 NH2 first oblique NH2 CH2 COOH। क्लियर। अब इसमें देखिए बेटा, यहां पर COOH, यहां से भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वाटर के साथ, और यहां से भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वाटर के साथ। बट अगर आप फर्स्ट में देखिए, सिर्फ यहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वाटर के साथ। सो फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है, सेकंड बना रहा है। देयरफॉर सेकंड इज सेड टू बी मोर soluble in water due to formation of more hydrogen bonds। ये था बेटा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, second part is CH3 COOH। ए कर लीजिए इसको, कोई बात नहीं, और फर्स्ट लिख लीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सेकेंड इज NH2 CH2 COOH सेकेंड।
अगेन सी द सेम, यहाँ पे COOH से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर NH2 और COOH बोथ विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. सो बेटा इस अमीनो एसिड में ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये कम बनाएगा, देयरफॉर दिस इज more soluble in water due to formation of more hydrogen bond. So this we have discussed the physical property, we have done some questions also. Now one thing is left, that is optical isomerism in amino acid, that is very important. Now just see out, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा वैसा ही है जस्ट वी हैव डन इन द कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ डिफरेंस क्या, हम इसको अप्लाई किस पे करेंगे, अमीनो एसिड्स पे. सो आई विल राइट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अमीनो एसिड. सो ऑल ऑफ यू नो, इफ द अमीनो एसिड कंटेन्स chiral carbon atom, then it is optically active. And we can also say it as chiral, हम उसको chiral भी बोलते हैं और we can say it as a symmetric. और chiral carbon atom आपको पता है वो कार्बन एटम जिससे 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हो, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द स्टार. सो वी आर हैविंग डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते हैं बेटा. एक एग्जाम्पल चाहो तो हम ले सकते हैं बिफोर वी डू सम क्वेश्चन. नाउ इफ आई विल गिव यू दिस वन, COOH H CH3 NH2. नाउ सी दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से अटैच्ड है. सो दिस इज सेड टू बी द chiral carbon atom. Due to the presence of chiral carbon atom, this is optically active, and this compound is also said to be a chiral compound, or you can say a symmetric compound. और अगर कोई ऐसा chiral carbon atom नहीं होगा, then it will be optically inactive. So just see the last question of today's lecture, that is identify the amino acid as chiral. Identify amino acid as chiral or achiral. चलिए, see the first example. NH2 CH2 COOH. चलिए बेटा, COOH को अगर हम ओपन करें, वी विल राइट OH. सो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी कायरल नहीं होता, सो दिस इज नॉट कायरल. अब इस कार्बन को देखिए, इस पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दिस वे, सो दोनों एक जैसे हो गए. सो दिस इज आल्सो नॉट कायरल. सो जो कंपाउंड है दिस इज नाउ अ कायरल, एंड ड्यू टू अ कायरल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. सेकेंड एग्जाम्पल नाउ. This one ring is given to us, this type of ring, NHCOOH. चलिए रिंग है तो थोड़ा सा इसको ओपन भी कर लेते हैं. वी विल राइट लाइक दैट CH2 C CH2 NH, and this point is C, this is attached to nitrogen, this is C double bond O. यहाँ पे बेटा एक H आएगा, इसको यहाँ लगा भी देते हैं ऐसे H, यहाँ पर आएगा CH2. चलिए अब चेक करते हैं, इज देयर एनी कायरल कार्बन एटम. डबल बॉन्ड वाला कभी भी कायरल नहीं होता, सो दिस इज अ कायरल. इस पे दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, आई विल राइट अ कायरल. दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, अ कायरल. अब इस कार्बन को देखिए जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस पे एक साइड तो क्या लगा है बेटा, नाइट्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH2 और ये पूरा ग्रुप मान लीजिए, और एक तरफ ये. सो दिस इज यू कैन से द कायरल कार्बन एटम. नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम, दिस मॉलिक्यूल is now said to be chiral, and hence therefore it is optically active.
So this is the second example that we have done. ठीक है, now the last example, that is the third one. Third example is CH2OH, CH, NH2. चलिए ओपन कीजिए इसको। अगर हम ओपन करें, दिस विल बी C डबल बॉन्ड OOH. सो बेटा ये अकायरल। नाउ यहाँ पर क्या है, आई विल राइट CH2OH, दोनों सेम हाइड्रोजन आ गए, सो दिस इज आल्सो अकायरल। अब इस कार्बन को देखिए, एक हाइड्रोजन, एक NH2, एक C डबल OH और एक CH2OH. सो दिस इज, यू कैन से, chiral carbon atom, due to which the molecule is said to be chiral and hence it is optically active. So student, today we have done a big topic, that is the amino acids, quite in detail. Clear? So this is all about the topic amino acids.